Pebbles Hindi. The Man and the Cat. One day, an old man was walking by the road. Suddenly, he saw a cat stuck inside a hole. The cat was very scared and was trying to come out of the hole. So the old man put his hand forward to help the cat. The cat got very scared and out of fear, she scratched the old man's hand. The old man pulled his hand back out of pain. But the old man did not give up. He kept on helping the cat. But the cat kept on scratching his hand. Another man was passing by and he saw all this. He told the old man, "Why are you trying to help the cat when she is hurting you again and again?" On this, the old man said, "I am doing my work and the cat is doing hers. My work is to help the cat and the cat's work is to protect herself." The old man did not give up. He kept on helping the cat again and again. And finally, the cat came out of the hole and she was very happy. The moral of the story is, sometimes we might face difficulties while helping others, but we must help them. He kept on helping the cat again and again. And King Midas' Golden Touch. Once there was a king named Midas. He was very rich. He had so many palaces and a large kingdom. But he was very unhappy. One day, he was praying to God and suddenly God appeared. King Midas asked God, "Oh God, please grant me a boon. Whatever I touch should turn into gold." God was happy. He said, "Your wish is granted." King Midas was very happy. King Midas touched his throne and that turned into gold. He touched the chairs, the tables, the vases. He touched everything and everything turned into gold. King Midas was very happy. He thought he was the richest man in the world. And suddenly, King Midas touched his dinner. And what did he see? He saw that all the fruits and all the food turned into gold. King Midas was astonished. He thought that he won't be able to drink or eat anything. Suddenly, his daughter came running to meet her father. And when the father put his arms around his daughter, what did he see? He was shocked. He saw that his daughter also turned into a statue of gold. "Oh no. Oh please, I do not want any more gold. I want my dear daughter back. I beg of you, God, please take away your boon. Please, I want my dear daughter back." And suddenly, God appeared. God said, "This is magical water. If you sprinkle this water on everything that turned into gold, everything will come back into its original form." King Midas was very happy. He sprinkled the magical water on everything that turned into gold. Suddenly he realized that everything came back to its original form. He got back his dear daughter. King Midas was the hen that laid golden eggs. Once, a farmer was living in a village. He was sitting under the tree. He was very poor. His days were passing with difficulty. One day, someone gave the farmer a hen. That hen gave one golden egg every day. That farmer sold that golden egg every day. Soon he became a rich man. All the people in the village started respecting him. The farmer became greedy. He thought that if the hen gives a golden egg every day, inside the hen's stomach there will be so many golden eggs. If I get all the golden eggs in one day, I will be the richest man of the entire village. The farmer took a knife
and cut the stomach of the hen. What did he see? He saw that there were no golden eggs inside the stomach of the hen. Poor farmer! He did not get any golden eggs and he even lost his hen. The moral of the story is, do not be greedy. भेड़िए की चालाकी। एक दिन एक भेड़िया मछली खा रहा था। खाते खाते उसके गले में हड्डी का एक टुकड़ा फंस गया। उसने वो टुकड़ा निकालने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी वो टुकड़ा निकाल नहीं पाया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अंत में वो मदद के लिए बाहर दौड़ा। रास्ते में उसे एक भालू मिला। उसने भालू से कहा, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, अगर तू मेरे गले में से ये हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल देगा। तब भालू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे पंजे बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैं हड्डी का टुकड़ा नहीं निकाल पाऊंगा। आगे रास्ते में भेड़िए को अपना दोस्त लोमड़ी मिला। उसने लोमड़ी से कहा, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, अगर तू मेरे गले में से ये हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल देगा। तब लोमड़ी ने बहुत कोशिश की। उसने कहा, ये हड्डी का टुकड़ा बहुत ही अंदर फंस चुका है, मैं उसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। लोमड़ी भी भेड़िए की मदद नहीं कर पाया। आगे भेड़िए को एक सारस मिला। उसने सारस से कहा, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, अगर तू मेरे गले में से ये हड्डी का टुकड़ा बाहर निकालेगा। तब सारस ने कहा, तू जितना बड़ा मुंह खोल सकता है उतना खोल दे। सारस ने अपनी लंबी चोंच अंदर डाली और फट से हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दिया। सारस ने कहा, मैं जो मांगूंगा वो तू मुझे देगा ना? तब भेड़िए ने हंस के कहा, तुझे तेरी भेंट मिल चुकी है। तूने तेरा मुंह एक भेड़िए के मुंह के अंदर डाला था और फिर भी तू जिंदा है। इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए जो उसके लायक हो। एक छोटी मुर्गी को जंगल में टहलना बहुत पसंद था। उसे बड़े बड़े पेड़ देखना, फूलों को सूंघना और पक्षियों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। एक दिन टहलते टहलते उसके सिर पर एक आम गिरा। वो बहुत डर गई। उसे लगा आकाश गिर रहा है। वो बोली, हे भगवान, आकाश गिर रहा है, मुझे ये बात शेर को बतानी होगी। वो जोर से दौड़ने लगी। भागते भागते उसे रास्ते में एक बड़ी मुर्गी मिली। बड़ी मुर्गी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तब छोटी मुर्गी बोली, हैनी पैनी, आकाश गिर रहा है और मैं ये बात शेर को बताने जा रही हूँ। हैनी पैनी बोली, तुम्हें कैसे पता कि आकाश गिर रहा है? तब छोटी मुर्गी बोली, वो मेरे सिर पर गिरा। हैनी पैनी भी छोटी मुर्गी के साथ जुड़ गई और दोनों शेर के पास दौड़े। दौड़ते दौड़ते दोनों को रास्ते में एक बतख मिला। बतख ने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब हैनी पैनी बोली, डकी लकी, आकाश गिर रहा है और हम ये बात शेर को बताने जा रहे हैं। डकी लकी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि आकाश गिर रहा है? तब हैनी पैनी बोली, वो छोटी मुर्गी के सिर पर गिरा। डकी लकी उन दोनों के साथ जुड़ गई। जब वो तीनों भाग रहे थे, रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब डकी लकी बोली, आकाश गिर रहा है और हम ये बात शेर को बताने जा रहे हैं। लोमड़ी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि शेर कहाँ रहता है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शेर के पास ले चलती हूँ। तीनों लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद
वो एक गुफा के पास पहुंचे। लोमड़ी ने कहा, अंदर आओ। तीनों गुफा के अंदर गए पर कभी बाहर नहीं आए। लोमड़ी ने उन्हें मारकर खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। गधा और भेड़िया। एक दिन एक भेड़िया खाने की तलाश में यहां वहां भटक रहा था। अचानक उसे एक गधा दिखा। वो धीरे धीरे गधे के पास जा रहा था, पर गधे ने उसे आते देख लिया। गधे को पता था कि भेड़िया उससे तेज दौड़ सकता है और दौड़कर वह अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसीलिए उसने एक तरकीब सोची। गधे ने ऐसा नाटक किया कि उसके पैर में चोट आई है और वो रोने लगा। ये देखकर भेड़िया उसके पास गया और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो भाई? मेरे पैर में कांटा घुस गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब भेड़िए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दर्द दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हें खा जाता हूं। तब गधे ने कहा, अगर तुम मुझे खा जाओगे तो ये कांटा तुम्हारे गले में अटक जाएगा। इससे अच्छा पहले तुम मेरा ये कांटा निकालो और फिर मुझे खा जाओ, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। भेड़िए को गधे की इस तरकीब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए वो गधे के पैर के पास गया और कांटा निकालने के लिए झुक गया। और जैसे ही भेड़िया झुका, गधे ने उसे जोर से एक लात मारी। भेड़िया हवा में उछला और जोर से नीचे गिरा। वो वापस उठ भी नहीं पाया। गधा वहां से भागा और उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही वक्त पर होशियारी हमें संकट से बचा सकती है। लोमड़ी और उसकी पूंछ। एक दिन एक लोमड़ी की पूंछ शिकारी के जाल में अटक गई थी। उसने अपनी पूंछ निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी पूंछ निकाल नहीं पाया। उल्टा उसकी पूंछ कट गई और उसने देखा तो क्या, पूंछ का एक छोटा सा छोड़ बचकर रह गया था। पहले तो लोमड़ी को अपने सारे दोस्तों के सामने आने में शर्म आ रही थी, पर फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। उसे एक सुझाव देना था। लोमड़ी ने कहा, दोस्तों, जब कुत्ते हमारे पीछे दौड़ते हैं तब ये पूंछ हमें बहुत तकलीफ देती है। जब हमें बैठना होता है तब भी ये पूंछ हमें बहुत तकलीफ देती है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप सबको अपनी पूंछ काट देनी चाहिए। वहां पर एक बूढ़ा और होशियार लोमड़ी बैठा था। उसने कहा, अगर तेरी पूंछ ना कटी होती तो तू दूसरों को पूंछ काटने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह नहीं लेनी चाहिए। पेबल्स हिंदी।